सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से लेकर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो पहले चेक कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टडी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एम आई करेक्ट? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने ये पढ़ा कि लीव्स कैसे अरेंज हैं, पेटल्स कैसे अरेंज हैं, सेपल्स कैसे अरेंज हैं, देन ओवरी का पोजीशन क्या है ना। हमने लीव्स के अंदर जाके उनके सेल्स की पढ़ाई नहीं की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आल्सो माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? Is it clear? Is it clear now? Okay. Am I audible now clearly? All right. So morphology of flowering plants में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा external features of flowering plants. We studied about ovary का position, petals, sepal इन सब के arrangement. Then हमने पढ़ा nodes पे कितने थैलेमस पे कितने nodes होते हैं, कितने इंटरनोड्स होते हैं, किस नोड पे कौन सा व्हर्ल होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। करेक्ट है? Now in this chapter, anatomy of flowering plants, we will enter into the internal structure of these plants. Internally ये plants कैसे दिखते हैं, कौन से type of cells है, therefore कौन से type of tissues मुझे नजर आएंगे, and these tissues how they are arranged, ये पढ़ाई अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है? तो जैसे अपन ने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था by defining the meaning of that term morphology, similarly I'll start this chapter also by defining the term anatomy, है ना। तो फर्स्ट वर्ड जो अपन डिफाइन करेंगे अपने बुक में लिखेंगे, पहले तो चैप्टर का नाम लिख दो, anatomy of flowering plants. This is the name of the chapter, anatomy of flowering plants. Anatomy of flowering plants. I'll give option to unmute after some time, ठीक है? Because I've been hearing about unnecessary comments and videos and messages from students during the lectures. Therefore, मैं थोड़ी देर बाद आपको जब मुझे मन करेगा तब मैं आपको अनम्यूट के ऑप्शंस दूंगा. Till then, all of you have to switch on your camera. Board students can leave this session. ठीक है? Board students को ये session नहीं बैठना है. Board students, you don't have to sit this session. I'll put a message in the group also right now. I'll continue then. तो सबसे पहले स्क्रीन पे अपन लिख देंगे चैप्टर का नाम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. करेक्ट है? एनाटॉमी of flowering
plants. Anatomy of flowering plants. We will first write the meaning of this term, which is known as study of internal structure, or else you should simply say study of structure. SOS, study of structure. Okay, what is anatomy? Study of structure. What is anatomy? Study of structure. I hope I am audible clearly now. Study of structure. Yes, sir. है ना, ये पार्ट अपने डिफाइन कर दिया, बस सिंपल है. जैसे मॉर्फोलॉजी वैसे यहाँ पे एनाटॉमी हमने डिफाइन कर दिया. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. I'll keep on taking screenshot students. आपको लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है. You have to keep your pen down. आराम से पेन नीचे रख के सेशन एंजॉय करो, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो, ठीक है. जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, I'll keep on sending the screenshots to you. थोड़ी देर में मैं सारे स्क्रीनशॉट्स आपको भेज दूंगा, अभी ड्यूरिंग लेक्चर ओनली, सो दैट आप अपना नोट्स भी बना पाओ. I'll wait for you. ठीक है, डोंट वरी. पेन नीचे रख दो, सब यहाँ ध्यान दो, रिपीट करते रहो मेरे साथ. So first thing is anatomy of flowering plants. What is the meaning of anatomy? Study of structure. Study of structure of flowering plants. Internal structure, especially इस केस में देखेंगे. Study of internal structure. So मैं word भी यहाँ पे mention कर देता हूँ, वो word that is internal. Study of internal structure. Study of internal structure of flowering plants. Study of internal structure of flowering plants. Okay. Then let me move ahead. आगे चले जाते हैं. Now next thing is which I have to understand. Next thing which I have to understand is what are the types of tissues which are present in plant. Immediately अपना टॉपिक स्टार्ट होगा. अभी ये तो आपको सेल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको अच्छे से पता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है ना, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आई शुड से in living organisms. Organizational level in living organisms क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो. सेल सबसे बेस पे रहता है ना. Then we have cells give rise to similar cells, and cells having similar functions give rise to tissue. Correct? Then tissues will come together to give rise to organ. Correct? Tissues will come together to give rise to organ, and organs will come together to give rise to organ system. Organ system. Organs will come together to give rise to organ system, and this organ systems together, all these organ systems will come together to give rise to entire organism. Entire organism. Correct? This is known as organizational level. Organizational level in living organisms. This is how living organisms are arranged internally. सबसे बेसिक यूनिट होता है सेल, और उसके बाद अपना बिल्डिंग ऊपर ऊपर चल जाती है. टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. अगर आप मुझे पूछो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, अब ये तो आपको ऑलरेडी आई गेस हो चुका है बीएस सर के साथ, करेक्ट है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ tissues are present in human beings, तो आपका आंसर होगा 4 types of tissues. Right or wrong? 4 types of tissues. Well done. There are 4 types of tissues which are present in living organisms, and these are epithelial, muscular, connective, neural. Right? Epithelial, muscular, connective, neural. Now, if I move towards the tissues which are present in plants, tissues which are present in plants. So topic का नाम मैं दे दूंगा. Next topic है मेरा plant tissues. समझ में आ रहा है आपको अपन कैसे मूव कर रहे हैं चैप्टर के अंदर अंदर. सबसे पहले हमने पढ़ लिया what is anatomy of flowering plants. Anatomy का मतलब हमने जान लिया. Then हमने organizational level चेक किए कि organizational level क्या है plants के अंदर, human beings की तरह ही, living organisms की तरह ही. सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये हमने देख लिया. देन टिश्यू के टाइप्स क्या है ह्यूमन बीइंग्स में हमने पढ़ा 4 टाइप्स, जिसका हमें इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिकलेक्ट. ह्यूमन बीइंग्स हैड और हैव, आई शुड से, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. स्टूडेंट्स, प्लांट्स में होते हैं 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एंड दीस 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर
चलो फटाफट से मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। These two types of tissues are, सबसे पहले अपन लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम लिखेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलूं या फिर दूसरा टाइप होगा परमानेंट टिश्यू, ऑल्सो नोन एज mature tissue. Permanent tissue also known as mature tissue. So two types of tissues are present in plants. One is meristematic tissue, one is permanent tissue. Now meristematic tissue का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इस वर्ड का ही मतलब होता है मेरिस्टोस या मेरिस। इस वर्ड का मतलब होता है टू डिवाइड। क्या मतलब होता है इसका? टू डिवाइड। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू can divide further. They can divide. So I'll just write they can divide. Okay, nothing else. They have capability to divide. Meristematic tissue के जो cells होते हैं, they can divide. Now try to recollect. Please try to recollect different regions of root. याद आ रहा है कुछ? Different regions of root. Root cap, region of meristematic activity, region of elongation, region of differentiation. ये हमने किया था, याद आ रहा है? तो उसमें जब आपने बोला था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आपको याद आ रही है? यस सर। तो वो था रीजन ऑफ that region had meristematic cells, or I should say meristematic tissue, because they were able to divide themselves. Permanent के केस में आप बोलोगे these tissues cannot, they cannot divide, they cannot divide. Let me take this screenshot. So अब तक हमने पढ़ लिया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। देन प्लांट टिश्यूज में अपन आ गए। प्लांट टिश्यूज में वी हैव टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड फर्दर, परमानेंट टिश्यूज कैन नॉट डिवाइड फर्दर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Raise your hand, just let me know. Yes sir. Each one of you have understood till now? Yes. Okay. Very good. Very good. Very good. ठीक है, let us move ahead. Let us move ahead. इसके आगे चलते हैं। कोई कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है? कोई भी लिखने वाला नहीं है। हाँ, श्योर मैं स्क्रीनशॉट भेजते रहूंगा, ठीक है? किसी को कुछ लिखना नहीं है, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना बस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम क्लासिफाइंग दिस फर्दर। तो आप अपने बुक में यहाँ तक बनाने के बाद, मेरे पास स्पेस नहीं है, सो आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग। आई विल रीराइट एवरीथिंग नाउ। आप क्या करोगे, जहां पे आपने ऐसे मेरिस्टेमेटिक लिखा होगा उसके नीचे यू विल स्टार्ट क्लासिफाइंग, इस तरह से, ठीक है? तो अब मैं जो स्क्रीन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफाई करूंगा, आप उसी फ्लो चार्ट को अपने पेज पे कंटिन्यू करोगे। आप वापस से मेरिस्टेमेटिक नहीं लिखोगे, जहां पे आपने मेरिस्टेमेटिक लिखा है वहीं से आपको कंटिन्यू करते जाना है नीचे की तरफ, ठीक है? ओके चलो देवांशी, आई होप तू लिख नहीं रही है, यहाँ पे तेरा ध्यान है पूरा, ठीक है? Meristematic tissue students. Now I'm going to further classify meristematic tissue. So meristematic tissue का classification is, it can be on the basis of two criteria students. Meristematic tissue can be divided on the basis of location, on the basis of location, or else on the basis of origin or occurrence. ठीक है? तो मैं ऑकरेंस के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकता हूं, इधर ऐसे ऑकरेंस और ऐसे ओरिजिन। लोकेशन मतलब क्या? सो कहां प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू 3 टाइप्स स्टूडेंट्स। वो 3 टाइप्स कौन से लेट अस सी। सो दीज 3 टाइप्स आर, इस तरह से आप अपने बुक में कंटिन्यू करोगे, ठीक है? 3 टाइप्स आर, फर्स्ट टाइप इज अपाइकल। क्या नाम है? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कंप्लीट नेम आएगा, ठीक है? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मैं अपाइकल MT ऐसे लिख दूं, आपको समझ में आएगा? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? सेकेंड टाइप आप बोलोगे इंटरकैलरी। क्या बोलोगे? इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So first type is apical meristematic tissue, second type is intercalary meristematic tissue, and third type will be lateral meristematic tissue students. Third type कौन सा है? Lateral meristematic tissue. So apical meristematic tissue,
intercalary meristematic tissue, lateral meristematic tissue. I hope point is clear up till now. Anatomy का मतलब होता है study of structure. Plant tissue में दो type, meristematic and permanent. Meristematic can divide further, permanent cannot divide further. Meristematic में तीन types. Based on location, I would say, and based on origin, ये दो classification होता है. Based on location, we have three types: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and lateral meristematic tissue. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? I'll take a screenshot and let me move ahead. Depending on the origin or occurrence मतलब क्या? तो प्लांट के बॉडी में या प्लांट में कब कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, तो उसके बेसिस पे ओरिजिन मतलब समझ में आया, ऑकरेंस मतलब अर्ली लाइफ में शुरू से ही प्रेजेंट रहेंगे ये टिश्यूज, या कुछ दिनों बाद प्लांट्स में दिखेंगे, कब आएंगे, तो उसके बेसिस पे आई कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर एज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैं क्या बोलूंगा? It is present since the beginning of plant life, and secondary meristematic tissue appears in the later part of life. Okay, so primary meristematic tissue जो होता है वो शुरू से ही present रहता है, since birth present रहेगा, and जो secondary meristematic tissue है वो कुछ दिनों बाद दिखने लगेगा मुझे प्लांट बॉडी में. कब दिखेगा? जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करना है तब दिखेगा. सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स व्हाट? तो सपोज अभी अगर पूजा देख रही है, छोटा सा उसके बिल्डिंग के बाहर एक छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में उसने देखा स्टार्टिंग में एक प्लांट ग्रो हुआ जिसका स्टेम बड़ा ही पतला सा है, छोटा सा स्टेम, ग्रीन स्टेम, यंग स्टेम, कुछ पत्ते आए हैं एंड रूट्स भी छोटे छोटे डेवलप हुए होंगे उस प्लांट के ग्राउंड के नीचे, है ना, सॉइल के नीचे. तो इसको शी विल से दिस इज प्राइमरी प्लांट बॉडी. अगर मैं पूजा को पूछूंगा इस प्लांट में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है पूजा, तो शी विल से प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है, सपोज दिस इज मैंगो प्लांट. ओके, फिर देन थोड़े सालों बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा हाइट में भी, and I'll say after few years this will develop into huge mango tree. अब मैंगो ट्री का अगर स्टेम हम चेक करें तो ऐसा ही होता है क्या? पतला सा ग्रीन कलर का बेंड होने वाला नहीं ना, बड़ा सा ह्यूज ट्रंक होगा, मोटा सा स्टेम होगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. अंडरस्टूड? सो ये जो ट्री बन जाता है ह्यूज ट्री, that is because of secondary growth. So secondary meristem कब आता है प्लांट में? बोलने का during the later stages of plant life. Primary meristem कब आता है? Right from birth. Embryo जब embryo का जो radical and plumule जब develop होना शुरू करते हैं तब से ही primary meristem present है plant body में. और कब तक present है? Till death. From birth till death. Throughout primary tissue is present. Secondary meristematic tissue develops later on in the plant life. Okay students, therefore मैंने लिखा है occurrence और origin. I'll revise everything once again. वापस से पूरा रिवाइज कर लेता हूं मैं. Anatomy of flowering plants, study of structure. Then as we have discussed in human, similarly we will go ahead with plant tissues also. So in case of plant tissues we have two types students. One type is meristematic tissue and the other type is permanent tissue. Correct है? We started classifying meristematic tissue. अभी पहले हमने उनके characteristics बताए. Meristematic tissue can divide further, but permanent tissue cannot divide further. Then meristematic tissue में हमने दो classification criteria check किए. First criteria is based on the location. So based on location, meristematic tissue can be of three types: apical meristem, intercalary meristem, and last type is lateral meristematic tissue. Next, based on the occurrence we have primary meristematic tissue and secondary meristematic tissue. Primary meristematic tissue will give rise to primary plant body, while secondary meristematic tissue will give rise to secondary growth. ये word आपको बोलना है, ठीक है? Primary meristematic tissue will give rise to primary plant body, while secondary meristematic tissue will give rise to secondary growth. Okay, I'll take a screenshot and इसको अपन पूरा का पूरा गायब कर देते हैं.
नाउ लेट अस रिवाइज। ठीक है, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो रिवीजन स्टार्ट करेंगे अक्षय से। चल अक्षय बोल। सर, anatomy of flowering plants, internal features of flowering plants, in a study of internal features of flowering plant, and then tissues, plant tissues, which are divided into two: apical meristematic tissue, and सर अगला टाइप कौन सा था? अपिकल मेरिस्टेम सबसे पहले तुमने मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट क्लासिफाई किया। हाँ, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कौन सा टिश्यू होता है सर? वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? सर मैं बोलूं? हाँ बोल। सर मैं बोलूं? बोल आयुष। सर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब स्टडी ऑफ internal feature of flowering plants. Plant tissue is divided into two parts: meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue can divide, whereas permanent tissue cannot divide. Meristematic tissue are further classified into two categories based on location and based on occurrence and origin. Based on location, it is further divided into three parts: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and lateral meristematic tissue. And for occurrence and origin, it is divided into two parts. First, it is primary plant body, and secondary growth. Primary meristematic tissue, which is for formation of primary plant body, and secondary meristematic tissue, which is for the secondary growth in plant body. Okay, next Devanshi. Anatomy of flowering plants means studying internal structure of flowers. It is the tissue. Plants are made up of two different types of tissue, that is meristematic and permanent. Meristematic tissues are one who can divide, and permanent are the one who cannot divide. Meristematic tissues are classified on the basis of location and where they grow. On the basis of location, there are three, that is intercalary, primary meristem, secondary or lateral. Whereas on the basis of second type, that is apical meristem, and ये already हो गया ना? Based on the location, you said apical, lateral, intercalary. Now based on origin. Or occurrence. Okay. Based on occurrence. नहीं, occurrence वाला नहीं याद है, but फिर permanent tissue का याद है sir. Based on occurrence, we have two types: primary and secondary. Primary meristematic tissue gives rise to primary plant body, while secondary meristematic tissue will give rise to secondary growth in plant body. What is secondary growth? Plant बोलेगा यार इतना पतला सा स्टेम तो मेरे काम का नहीं है, तो मुझे मोटा सा स्टेम चाहिए, है ना? तो वो लैटरली ग्रो होगा ना स्टेम। अचानक से आप देखोगे कि स्टेम का डायमीटर एकदम छोटे से प्लांट में कितना होगा, मैक्सिमम 2 to 3 सेंटीमीटर्स। बड़े ट्री में कितना हो जाएगा, ह्यूज डायमीटर हो जाएगा उसके स्टेम का। दिस इज बिकॉज ऑफ लैटरल ग्रोथ, एंड दैट लैटरल ग्रोथ इज सप्लाइड बाय द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, अब हमने जो भी टर्म्स पढ़ लिए स्टूडेंट्स, ये सारे टर्म्स को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो भी आपने मल्टीपल टर्म्स अब तक हमने पढ़े हैं, मेरिस्टेम में भी मल्टीपल टर्म्स आपने पढ़ लिए, करेक्ट है? सो ये मल्टीपल टर्म्स को अब मैं इक्वेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो जो आपने अलग अलग नाम पढ़े मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, अलग अलग नाम पढ़े, उनको अब मैं सेम नेमिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है? उनको उनका टीम बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू, करेक्ट है। आपने सबसे पहले पढ़ लिया था प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके अंडर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, करेक्ट है, हाँ ऑन सर। द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, है ना। इसको मैं इमीडिएटली डिवाइड कर देता हूँ, ये रहा डिवीजन अपना हो गया, ओके। देन आपने पढ़ लिया सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा हमने, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ इमीडिएटली आई वुड लाइक टू इक्वेट देम, इक्वेट का मतलब समझता है ना, इक्वेशन क्या होता है, बीच में इक्वल टू साइन रहता है ना, इक्वेशन मतलब इक्वल हैं दोनों, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, तो अब मैं इनको इक्वेट करने जा रहा हूं। सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप्स को ही बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, समझ में आया। प्राइमरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट अपाइकल इंटरकैलरी, तो आप बोलोगे लैटरल, फिर तो लैटरल क्या हो गया, लैटरल इज नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब तक आपने इन पांचों नाम को अलग अलग देखा ना, जो भी मैंने ब्लैक से जो भी नेम्स लिखे हैं उनको आपने अब तक कैसे पढ़ा, बेस्ड ऑन लोकेशन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यू सेड अपाइकल इंटरकैलरी लैटरल। नेक्स्ट आई आस्क यू बेस्ड ऑन ऑकरेंस और ओरिजिन, तो आपने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पर एक्चुअली देखा जाए तो प्राइमरी के ही दो टाइप्स हैं, अपाइकल एंड इंटरकैलरी, मतलब यू कैन से प्राइमरी इज नथिंग बट अपाइकल। अगर मैं आपको पूछूंगा मुझे एक बात बताओ, बेस्ड ऑन लोकेशन कितने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, आप बोलोगे अपाइकल इंटरकैलरी लैटरल, ओके। देन इफ आई आस्क यू लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, अंडरस्टूड। इफ आई आस्क यू अपाइकल मेरिस्टेम का ही दूसरा नाम क्या है, यस यस बोल। Sir, can you explain this again? I didn't understand. हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इफ आई आस्क यू अपाइकल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है, तो यू विल से प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इफ आई आस्क यू इंटरकैलरी मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है, आप बताओ आंसर क्या दोगे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शाबाश। इफ आई आस्क यू लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शाबाश, अंडरस्टूड। तो दो तरीके हैं इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने का, पहला तरीका था बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, एंड दूसरा हमको अब पता चल गया अरे ये सब तो आपस में मिले जुले हैं, ये इनके सबके एक दूसरे के सेम नाम है, बस भाई वर्ड्स अलग हैं बट इनके दे आर नथिंग बट द सेम स्ट्रक्चर्स, ओके। तो पहले इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इमीडिएटली। नाउ आई एम गोइंग टू लोकेट देम, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सा स्टेम मैं बना लूं स्टूडेंट्स, ये देखो एक सिंपल सा स्टेम अगर मैं बना लूं, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टेम को, हमको ऑलरेडी पता है उसके लिए एक और वर्ड हम क्या यूज करते थे, शूट और स्टेम, राइट है, शूट और स्टेम। तो लेट मी ड्रॉ अ स्टेम, ओके, एक स्टेम ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह से मैंने स्टेम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और स्टेम के इस रीजन के लिए आप मुझे कोई वर्ड सजेस्ट करो, स्टेम के इस रीजन के लिए क्या वर्ड मैं बोल सकता हूँ, इस रीजन को क्या वर्ड बोल सकता हूँ, अपेक्स, दिस इज परफेक्ट, अपेक्स, है ना। अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ रहेगा, अपाइकल मेरिस्टेम, एक अगर मैं एक स्टेम में देख रहा हूँ या रूट में देख रहा हूँ, इधर इन स्टेम और रूट दोनों तो प्राइमरी प्लांट बॉडी के हिस्से है ना, प्राइमरी प्लांट बॉडी याद आ रहा है, प्राइमरी प्लांट बॉडी क्या है, जो पूजा ने देखा था उसके गार्डन में, छोटा सा प्लांट, स्टेम भी है, रूट भी है, लीव्स भी है, दैट इज प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो एक प्राइमरी प्लांट बॉडी में स्टेम भी होता है, रूट भी होता है, लीव्स भी होते हैं, तो उसी स्टेम के अपेक्स पे जो टिश्यू होगा उसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अपाइकल मेरिस्टेम, करेक्ट है स्टूडेंट्स। सो लेट मी लेबल ओवर हियर, दिस इज अपाइकल meristematic tissue. Is this understood? Apical meristematic tissue. Immediately give me answer. Apical meristematic tissue is also known as dash. Apical meristematic tissue. Primary. Well done. Primary meristematic tissue. Or I can also say apical meristematic tissue is a type of
primary meristematic tissue. Correct? Clear till here? Okay. I'll move ahead, students. अब एक concept समझ लेते हैं, ठीक है? Primary जो होता है, primary meristematic tissue, ये आपको आता है ऑलरेडी, ये आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद करो, रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स याद करो, रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स याद करो. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी can divide further and they give rise to cells which cannot divide further, they can only elongate, giving rise to region of elongation. और यही सेम सेल आगे जाके क्या हो जाएंगे, रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? तो can I say primary meristematic tissue gives rise to, ध्यान से सुनना, ठीक है? Can I say primary meristematic tissue gives rise to permanent tissue? Yes, sir. Yes, sir. Can I say this? जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था, अब इन दोनों को हमने रिलेट कर दिया. दो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एंड परमानेंट टिश्यू होता है. सो कैन आई से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही तो परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू बनते हैं? कैन आई से दैट प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी नहीं बोलना चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी खाली बोलूं तो भी चलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू बनते हैं. एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ मुझे. ये बात सिंपल है मेरी, ये बात सिंपल है. ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, चेक करो. ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, डोंट वरी, ठीक है? आप चेक करो प्लीज स्क्रीन पे. इफ आई से दैट येलो, ये रीजन जो है वो ऑलरेडी परमानेंट बन चुका है, ठीक है? सो दिस रीजन इज परमानेंट टिश्यू. सपोज दिस इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू दूसरा नाम मैंने क्या बोला था आपको, मैच्योर टिश्यू, ठीक है? अगर ये मैच्योर टिश्यू है एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी नीचे भी एक मैच्योर टिश्यू बना देता हूँ, ठीक है? ये देखो, यहाँ भी एक मैच्योर टिश्यू मैंने बना दी. सो ये भी मैच्योर टिश्यू है एंड ये वाला भी परमानेंट टिश्यू मैच्योर टिश्यू है. तो नाउ meristematic tissue which is present between two permanent tissues, meristematic tissue which is present between two permanent tissues is known as inter. याद आ रहा है? इंटर वर्ड मतलब क्या होता है? इन बिटवीन ना, Yes, sir. इंटरकैलरी. समझ में आया? अपाइकल तो आपने बोल दिया अपेक्स पे प्रेजेंट होगा, कंफर्म बात है. इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which is present between two permanent tissue is known as intercalary meristematic tissue या intercalary meristem. सिंपल है. नाउ ये डायग्राम को देख के आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे आंसर दोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? Study of internal Study of structure. internal structure. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी में बोलता तो आप बोलते स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एनाटॉमी में बोला तो आप बोलोगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. वेरी स्पेसिफिकली स्पीकिंग, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया मॉर्फोलॉजी, तभी आप यहाँ पे लॉजिक बनता है अगर आप बोलो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. तो इस चैप्टर के लिए एज अ स्टूडेंट यू शुड यूज द वर्ड इंटरनल, बट एनाटॉमी ओवरऑल यू शुड यूज जस्ट द टर्म स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. दैट्स इट. ओके, SOS याद रखने का. Whenever I say physiology, you should use the word F then. SOF, study of function, that is physiology. Study of structure, that is anatomy. Okay, next. Types of tissues present in plants. Two types, permanent and Meristematic and permanent. Yes, very good. Meristematic and permanent. Okay, meristematic and permanent. Meristematic tissue can dash. Can divide. Very good. Can divide further. Permanent tissues Cannot Cannot divide. very good. Immediately question मैं पूछ रहा हूँ. Hence I can say meristematic tissue give rise to. Sir, please repeat. permanent tissue. Permanent tissue. Very good. Good answer. Good answer. Meristematic tissue give rise to permanent tissue or mature tissue, है ना? Meristematic tissue will divide in order to form meristematic tissue. Sorry, permanent tissue, है ना? Meristematic tissue divide हो जाएंगे क्या बनने के लिए? Permanent tissue बनने के लिए, mature tissue बनने के लिए, है ना? Next, meristematic tissue can be divided
by two criteria. The first criteria is based on location. So location के basis पे we have three types. First type is apical meristem. Very good. Second type is Intercalary meristem. intercalary meristem. Lateral. Well done, well done. Third type is lateral meristem. Lateral meristem. So lateral meristem इस diagram में मैं कैसे denote करूँ students? Lateral meristem कैसे denote करूँ? तो मैं क्या करूँगा? मैं इस तरह से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ऐसे यहाँ पे एक लाइन और इसको थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है? दिख रहा है ब्लैक वाला लाइन, और इसको भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. So this is lateral meristem. You should not think that lateral meristem खाली नीचे होता है क्या? Throughout stem होता है. It is throughout stem, definitely throughout stem होता है. But मुझे यहाँ पे mix नहीं करना है concepts, इसलिए मैंने खाली नीचे बना रखा है, ठीक है? So lateral meristem आपको समझ में आएगा. Circumference, periphery across, ठीक है? Circle, actually वो ऐसा दिखना चाहिए आपको. This is how you should imagine students. ये देखो, this is how you should imagine. ऐसा कुछ. Understood? Circumference पे रहता है. ये जो stem आपको दिख रहा है, ये स्टेम भी तो एक्चुअली ऐसा ही है ना, ये देखो, करेक्ट है? तो उसी स्टेम के आउटर मतलब सर्कमफरेंस में बाहर की तरफ जो सेल्स होंगे, मतलब थोड़ा सा आउटर, एकदम सेंटर में नहीं लोकेटेड होगा, रेडियली बाहर की तरफ, ठीक है? तो मैंने कैसे ड्रॉ किया? टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का कैसे बनाऊंगा मैं? इस तरह से आई विल डिनोट, सॉरी. Okay, so this is lateral meristem. This is lateral meristem. तो यहाँ पे I'll give the name lateral meristem. Let me write lateral meristem. ठीक है, क्या नाम लिख दिया मैंने? Lateral meristem. I'll save the image. कुछ भी लिखना नहीं है आपको. ठीक है, क्लियर है? अब हम easily locate कर पा रहे हैं तीनों नाम. apical, then intercalary. Intercalary मतलब क्या? Actually ऐसा लिखा गया आपके टेक्स्ट बुक में, some of the left behind cells of shoot apical meristem. Some of the left behind cells of shoot apical during growth के वक्त shoot apical meristem के कुछ cells जो नीचे रह जाते हैं between two permanent tissues, उनको नाम दे दिया जाता है intercalary meristem. That is how आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन लिखा गया है. The cells which are left behind, or the left behind cells of shoot apical meristem, which are now present between two mature tissues, are known as intercalary meristematic tissue or intercalary meristem. And the meristematic tissue which is present laterally in the stem and which is going to be responsible for the secondary growth. Please correct me if I'm wrong. Lateral meristematic tissue are the meristematic tissue which is present along the lateral margin of the stem and which are going to be responsible for the secondary growth of the stem. आगे चल के यही टिश्यू से हमारा स्टेम मोटा सा बन जाएगा. So these tissues are known as lateral meristem. Okay? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे क्या मैं चेंजेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. अपाइकल मेरिस्टेम को स्लैश करके कैन आई राइट प्राइमरी ओवर हियर, है ना? नेक्स्ट इंटरकैलरी को ही स्लैश करके कैन आई राइट प्राइमरी ओवर हियर. नेक्स्ट लैटरल को ही स्लैश करके कैन आई राइट सेकेंडरी ओवर हियर, है ना? सिंपल है. देखो तो अभी पांचों वर्ड को हमने एक ही स्क्रीन पे ले लिया, ठीक है? Okay, now what I'll do is, अब तक मैंने जो भी ड्रॉ किया है, जितना भी सारे स्क्रीनशॉट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ. So you can start making your notes. I'll wait for 10 minutes. फटाफट से नोट्स बना लो. Once you're done, just raise your hand. So we'll continue further. ठीक है? I'll pause the recording also. So we'll move ahead. Next segment में जाएंगे. अब तक हमने क्या क्या कर लिया है? हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लोकेशंस हमने बता दिए, प्राइमरी एंड सेकेंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब इन पांचों के बारे में, जो पांचों टर्म्स आपने पढ़े हैं ना, इन पांचों टर्म्स के बारे में नाउ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. सो आपको इनका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, इनके बारे में हम क्या क्या बातें करेंगे वो आपको जानना चाहिए. सो यू कैन मूव इनटू आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इफ इन केस आपको रेफर करना है तो. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इट इज ऑन पेज नंबर 84 स्टूडेंट्स.
पेज नंबर 84 पे। ओके चलो आई मूव अहेड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ 84 85 पे आपका इंट्रो पार्ट है, ठीक है, आप लेटर ऑन बुक में चेक करो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एवरी टर्म को, जो भी आपने अब तक टर्म्स पढ़े हैं, हर टर्म को मैं अब एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। So I'll start with the first term, which is apical meristem. Apical meristem, ठीक है, apical meristem। देखो मेरिस्टेम जो वर्ड है, मेरिस्टेम वर्ड टिश्यू नहीं इंडिकेट करता। मेरिस्मेटिक टिश्यू जब आप बोलोगे ना, देन यू आर इंडिकेटिंग अबाउट टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन यू से मेरिस्मेटिक टिश्यू, मैं टिश्यू वर्ड डाल दूंगा तब आप एक टिश्यू को रेफर कर रहे हो। इफ आई से ओनली मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, मतलब मैं उस सेल के बारे में, उसके एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अपाइकल मेरिस्टेम। इफ आई से अपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, दैट इज व्हेन आई एम रेफरिंग टू द कलेक्शन ऑफ सेल्स। आई होप आपको इसके बीच में फर्क समझ में आ रहा है। मेरिस्टेम मतलब एक सेल है, मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब एक टिश्यू जो मेरिस्टेम्स से बना हुआ है। ओके, एंड व्हेन आई से मेरिस्टेम, आई डू नॉट मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होगा, रॉन्ग। व्हेन आई से अपाइकल मेरिस्टेम, तो अपेक्स पे प्रेजेंट होगा। किसके अपेक्स पे, अब अपन लिखेंगे, ठीक है। सो अपाइकल मेरिस्टेम का फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज अ टाइप ऑफ, कोई भी लिखेगा नहीं मेरे साथ, ठीक है, यहां फोकस करोगे। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, क्लियर है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट, Yes. लोकेशन कहां प्रेजेंट होगा, लोकेशन कहां प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे टिप of root and shoot. ऑफ, वेरी गुड, टिप ऑफ रूट एंड शूट, टिप ऑफ रूट एंड शूट। पॉइंट नंबर 3, देयरफॉर, इसके टाइप्स क्या बनते हैं, इसके टाइप्स क्या बनते हैं। सो इनके टाइप्स आप बोल दोगे इमीडिएटली, शूट अपाइकल मेरिस्टेम root and apical meristem. root apical meristem, right है, shoot apical meristem and root apical meristem। तो shoot, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ root, and ये सेम हो जाएगा, करेक्ट है। apical meristem, लोकेशन, टिप मैं बोलूं या अपेक्स बोलूं, क्लियर है ना दोनों टर्म, टिप बोलूं या अपेक्स बोल सकता हूं मैं। तो इफ यू वांट, तो what I'll do is tip slash apex भी लिख देता हूँ, tip slash apex of root and shoot, shoot slash stem, करेक्ट है, shoot slash stem। So apical meristem, type of primary meristem, location है tip of the or apex of the root and stem, और shoot and बोल रहा हूँ, और नहीं बोल रहा हूँ, root and stem, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, दोनों के पास होना पड़ेगा। टाइप्स क्या है इसके, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, देन इसके जो कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट है, लेफ्ट ओवर सेल्स है, ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम से ही, ये देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, डेवलप्स इनटू, तो इनटू के बदले में एरो डालू चलेगा। अपाइकल मेरिस्टेम से ही डेवलप होता है स्टूडेंट्स, अपाइकल मेरिस्टेम से ही डेवलप होता है, ये वर्ड आपने सुना है, ये आपने सुना है ये वर्ड, ठीक है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अपाइकल मेरिस्टेम के ही स्पेशली शूट है, शूट, ठीक है, शूट मुझे बोलना चाहिए। तो ऐसे यहां से शुरू करता हूं मैं, इसमें रूट पिक्चर में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अब शूट की बात कर रहे हैं। शूट apical meristem, shoot apical meristem develops into Stem. axillary bud, shoot apical meristem के ही कुछ cells, some cells, ऐसे लिख दो, some cells, जो मैंने बोला लेफ्ट ओवर सेल्स, याद आ रहा है, some left over cells, some leftover shoot apical meristem, some leftover shoot apical meristem develop into axillary bud।
अभी नितिन ने जो आंसर दिया शूट अपाइकल मेरिस्टेम डेवलप्स इनटू, वो तो उसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो तो डेफिनेटली एक पॉइंट बनता है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम डेवलप्स इनटू शूट, रूट अपाइकल मेरिस्टेम डेवलप्स इनटू रूट। तो जब आप मॉर्फोलॉजी में थे आप मुझे क्या आंसर देते थे, रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट। तो अब मैं उस कंसेप्ट को एक और वर्ड दे रहा हूं, देखो radical has root apical meristem which develops into root, समझ में आया? Plumule has shoot apical meristem which develops into shoot system. But यहाँ पे ये मैं कुछ और बता रहा हूँ, some leftover cells of shoot apical meristematic tissue, ऐसा बोलूंगा या फिर बोलूंगा some leftover shoot apical meristems develop into axillary bud। याद आ रहा है axillary bud? axillary bud याद आ रहा है? स्टेम Yes, पे sir, होते हैं याद है। axillary bud। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द डैश ऑफ पेटियोल और लीफ। स्टेम के बीच में। हाँ, तो वर्ड का नाम बोलो, वर्ड एक्सिल। एक्सिल इज राइट आंसर, वेल डन। एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द डैश ऑफ लीव्स, आप आंसर दोगे एक्सिल ऑफ लीव्स, राइट है। ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन था। एक्सिलरी बड, एक्सिल नाम में ही देखो वो वर्ड है ना। Axillary bud is present in the axil of leaves. Axillary bud is present in the axil of leaves. याद आ रहा है एक्सिल के बारे में स्टूडेंट्स, याद आ रहा है? ये Yes, देखो sir. ये अगर मैं ऐसे ब्रांच बना दूं, है ना, देन आपने ऐसे लीफ बना रखा था, ये देखो ऐसे पीटियोल हमने बना दिया, देन हमने लीफ बना दिया था, करेक्ट है। तो ये जो एंगल है, ये देखो ये जो स्पेस है ब्रांच एंड पिटियोल के बीच का जो स्पेस था, उस एंगल को याद है मैंने लिखा था, उस एंगल का नाम लिखा था एक्सिल। दिस एंगल इज नोन एज एक्सिल। कैन यू रिकलेक्ट दिस? आपने मॉर्फोलॉजी में ये मार्क किया है, दिस इज एक्सिल। तो एक्सिल में याद है हमने एक बड ड्रॉ किया था, हमने नाम दिया था दिस इज एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। एंड बिकॉज लीफ तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, तो नाउ इफ आई आस्क यू एक्सिलरी बड कैन गिव राइज टू, स्टूडेंट्स एक्सिलरी बड may develop into, याद है bud is तो growth point ना, so axillary bud may develop into branch, axillary bud may develop into branch or flower, correct है। axillary bud may develop into branch or flower। if axillary bud develops into branch, it is known as dash bud, it can also be called as dash bud। Vegetative bud, well done Devanshi, I think Devanshi का भी आंसर राइट था, but only thing is mute पे थी। Vegetative bud, vegetative bud is correct answer। If the axillary bud develops into flower, it is also known as Flower. very good floral bud or dash bud। एक और नाम reproductive bud, reproductive bud, well done। ठीक है, पूरा रिपीट करो एक साथ, है ना, पूरा एक बार देख लेते हैं। तो इसका फिलहाल मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जो नितिन ने पॉइंट बोला था उसको मैं लिखूंगा, ठीक है, अभी नहीं, उसको लिखेंगे अपन, वेट करते हैं उसका। सो अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में हमने पहला पॉइंट क्या लिख दिया, टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके। देन उसके लोकेशन हमने बता दिया, अपाइकल मतलब अपेक्स पे प्रेजेंट होगा, एट द अपेक्स ऑफ रूट एंड द अपेक्स ऑफ शूट। देन टाइप्स कौन से हैं, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। यहीं पे वी हैड टू एक्चुअली राइट डेवलप्स इनटू शूट, डेवलप्स इनटू रूट, बट हमने वो मिस किया, ठीक है, इसके बाद उसको नोट डाउन करेंगे। सो हमने कहां अपन चले गए, सम लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ या लेफ्ट ओवर सेल्स ऑफ स्पेशली शूट अपाइकल मेरिस्टेम। डेफिनेटली यहाँ पे रूट नहीं आएगा, प्लीज फोकस, यहाँ पे रूट कभी नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन है, शूट ही है। एक्सिलरी बड रूट पे नहीं दिखते हमको, ठीक है। तो some leftover cells of shoot apical meristematic tissue, or I should say some leftover shoot apical meristems will develop into axillary bud. Axillary bud is present in the axil of leaves, ठीक है, present in the axil of leaves। अब ये present वाला मैं कैसे दिखाऊं, axillary bud, okay, what is axillary bud? Axillary bud is the growth point, ठीक है, axillary bud से ग्रोथ होने वाला है। तो कोई अगर बोलेगा कि बड मतलब क्या, बड मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो फर्दर ग्रो होने वाले हैं, जो दे विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन प्लांट, अंडरस्टूड। एंड व्हाई डू आई कॉल इट एज एक्सिलरी बड, बिकॉज वो एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो मैं ये ऐसे रेड लाइन यहां लेकर ऐसे यहां लिख देता हूं प्रेजेंट, या फिर मैं लिख देता हूं
लोकेशन वो बेटर होगा, तो लोकेशन लिख के आई पुट अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लोकेशन लिख के आई पुट अ क्वेश्चन मार्क। सो आपके नोट्स में भी आप डाल पाओगे ये। एक्सिलरी बर्ड का लोकेशन क्या बोलोगे? एक्सिल ऑफ लीफ और लीव्स भी बोल सकते हो, एक्सिल ऑफ लीफ। सो एक्सिल क्या है? अगेन आई ड्रॉ डायग्राम ओवर हियर, दिस इज सपोज ब्रांच, ओके, एंड दिस इज सपोज पिटियोल, और अगर ये लीफ है, ठीक है, दिस इज लीफ, ये हमने लीफ ड्रॉ कर दिया, तो ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये जो येलो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये जो एंगल है, this angle is known as axil, okay, this is known as axil. So axillary bud कहाँ होगा? समझ में आया axillary नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि axil में प्रेजेंट होता है लीफ के, इस वजह से नाम आ रहा है axillary bud, axillary bud। पॉज लो, एक पॉज लेने का बोलते वक्त, axillary bud, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर ऐसे एक डॉट बना दूं, so this is axillary bud which can further grow into, है ना, करेक्ट है, this is axillary bud which can further grow into। अभी क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक एरो ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये एरो मैं लेकर आता हूँ यहाँ ऐसे, करेक्ट है, दिस इज एक्सिलरी बड स्टूडेंट्स, present in the axil of the leaf, which may develop into branch or flower. It may develop into branch or flower. If it develops into branch, the axillary bud can also be called as vegetative bud. If the axillary bud develops into flower, it can be called as reproductive bud, और जैसे अश्विनी ने बोला floral bud, ठीक है, अश्विनी ने flower बोला, I think अपन floral bud will consider, okay। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर I'll move ahead। नेक्स्ट पेज पे immediately we can write what Nitin said। so अपन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? अपन ऐसे लिख देते हैं, ये देखो, हम ऐसे लिखेंगे अपाइकल मेरिस्टेम। नाउ अपन इसका मेन फंक्शन बताने जा रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे अपन कि अपाइकल मेरिस्टेम तो एक टाइप ऑफ डैश टिश्यू है। बताओ मुझे, अपाइकल मेरिस्टेम तो एक टाइप ऑफ डैश टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गुड आंसर, गुड आंसर, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेल डन, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाना ना, तो अब हम वो जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके इस फंक्शन को जस्टिफाई करने जा रहे हैं। सो अपाइकल मेरिस्टेम में दो टाइप हो सकते हैं, दैट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम, क्या बोलेंगे? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, एंड हम बोलेंगे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड root apical meristem, I'm sorry, shoot apical meristem and root apical meristem। अगर मैं आपको पूछूं कि shoot apical meristem is present at, तो आप बोलोगे initially it is present at the tip of plumule and later on present at the tip of shoot, है ना, because plumule से डेवलप होता है ना shoot, करेक्ट है। तो मैं ऐसे मैं एरो मार्क कर देता हूँ, एरो, तो आपको समझेगा ये डेवलपमेंट स्टेज है ना। ये देखो इस तरह से, वेट, ऐसे एरो लगा देता हूं मैं, तो यहाँ जो वर्ड आएगा प्रेजेंट एट टिप ऑफ द प्लूम्यूल, एंड आप एरो देकर प्लूम्यूल डेवलप होता है शूट में, तो यहाँ लिखोगे ऑल्सो स्लैश देकर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट, बिकॉज प्लूम्यूल से ही शूट बनता है। सिमिलरली यू राइट फॉर रूट अपाइकल मेरिस्टेम, तो आप बोलोगे प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रेडिकल स्लैश प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट। तो खाली रेडिकल में प्रेजेंट नहीं होता, रेडिकल में प्रेजेंट होगा तभी तो डेवलप होगा इनटू रूट, है ना, और रूट में भी प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। याद है, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये तो लाइफ साइकिल थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगा ही होगा, ओके। तो हेंस इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, develops into shoot system, and this develops into root system। तो एक काम करो, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लूम्यूल लिखो, present at the tip of the plumule, then अपन आगे लिख रहे हैं वैसे भी, develops into shoot, and then root के लिए आप लिख दो present at the tip of the radical, and then नीचे आप लिख सकते हो hence it helps in development of, develops into root। जैसे आपने shoot and root का डेवलपमेंट यहाँ पे जस्टिफाई किया, वैसे ही now as a student I'll understand कि okay, मतलब they are responsible for
प्राइमरी प्लांट बॉडी, करेक्ट है ना, बिकॉज रूट एंड शूट तो इन्होंने फॉर्म कर दिया। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देते रहो, ठीक है? अपाइकल मेरिस्टेम इज अ टाइप ऑफ डैश मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Primary meristem. Very good. Apical meristem is present at the apex of dash and dash. Radical, plumule Okay. and shoot. Radical and plumule भी आप बोल सकते हो, root and shoot भी आप बोल सकते हो, no problem with that. Okay. Just because of apical meristematic tissue, radical develops into dash. Root. Root. Very good. Just because of apical meristematic tissue, plumule develops into dash. Shoot or stem system. Next, some left behind cells of shoot apical meristem compulsorily. Shoot apical meristem are known as dash in the stem. Axillary bud. Axillary bud. Very good. Which are present in the dash of leaves. Axil. Axil. And they may develop into dash or dash. Branch and flower. Branch Branch or flower. Hence they are known as dash or dash. Vegetative or reproductive. Well done. ठीक है, तो यहाँ तक का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब ये आपको सेंड कर दूं, पहले ये लिखोगे फिर आई मूव अहेड। Yes sir. Yes, sir. लिखने के लिए अपन रेडी है। सर यस बोल। सर जब हम इंटर कैलोरी को डिफाइन कर रहे थे तभी बोला था कि अपाइकल का जो लेफ्ट ओवर टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू के बीच में बनता है, तो अभी एक्सिलरी बर्ड भी नहीं, वो लेफ्ट ओवर वाला वर्ड वहां पे अगर लिखा है तो वो वहां से निकाल दो। लेफ्ट ओवर वाला पार्ट वहां पे नहीं लिखेंगे, इंटर कैलोरी के लिए खाली लिखेंगे बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज बस। ओके सर। ओके, मैंने इमेजेस भेज दिए स्टूडेंट्स, यू कैन स्टार्ट राइटिंग, थोड़ा फटाफट करना, ठीक है? ओके, आई थिंक आपका ओबेद सर के साथ लेक्चर इज ऑन फ्राइडे 10:30 to 1:30, ठीक है? फ्राइडे होगा 10:30 to 1:30। So till then what you can do, अगर आपका एक्सप्लेनेशन पहले से हुआ है इफ इन केस, तो आप क्वेश्चंस फॉर्मूला लेके आगे यू कैन कीप स्टार्ट सॉल्विंग इफ पॉसिबल, और एल्स जो अब तक अभी आपने सॉल्व किया है उन पे आप स्ट्रेस दे सकते हो, बाकी बुक से वो सेम सॉल्विंग करो। मैंने ऑलरेडी पेपर जो है लैडर 0.2 मैंने ओबेद सर को दिखा दिया है, सो ही नोज वेरी वेल कि कौन से टाइप्स मेजॉरिटी उसमें है। तो इफ इन केस ही थिंक्स कि टाइम कम पड़ रहा है तो हम वो लिमिटेड टाइप्स ही कवर करके वी विल एंटर इनटू द एग्जाम, बट मोस्ट प्रोबेबली हम वो चैप्टर पूरा ही करेंगे बिकॉज आई वांट दिस चैप्टर टू बी कंप्लीटेड and to be available for ladder 1.0 also. Actually Friday भी एग्जाम है। निर्मला स्टूडेंट्स चेक करके बता दो। सर ट्यूसडे तक एग्जाम। start the recording again।